Hello, my dear students. Welcome back to the YouTube channel of Pai Mastan Singh Public Senior Secondary School. My name is Ravinder Palkar and this is your maths class. Today we are going to start exercise 3.2 of chapter 3. The topic which we are going to start today, that is properties and patterns of some square numbers. In the previous exercise, we did prime factorization method to find out whether the given number is a perfect square or not. There are many properties and pattern about the squares of natural numbers by which we can check that whether given natural number is a perfect square or not. So in this topic, in this video today, we'll do the properties of square numbers only. Patterns we'll do in the next topic, in the next video. So first property is a number having 2, 3, 7 or 8 at units place is never a perfect square. Means a number which ends with 2, 3, 7 or 8 can never be a perfect square, like 2, 7, 8. It cannot be a perfect square. 62, it is not a perfect square. Okay? So the number at the units place, if the digit at the unit place is 2, 3, 7 or 8, that number cannot be a perfect square. Now the second property is the number of zeros at the end of perfect square is always even. अगर एक नंबर के एंड में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो हैं वो इवन हैं, then that can be a perfect square. Means अगर किसी नंबर में suppose there is a number 100, if the number of zeros at the end are even, here there are two zeros, so the number of zeros is even. अगर यहाँ पे even number of zeros होंगी तभी उस नंबर के perfect square होने के chances हैं. Otherwise अगर odd number of zeros होंगी then definitely it will not be a perfect square. But it does not mean कि अगर even number of zeros होंगी तो वो पक्का ही एक perfect square number होगा. It may or may not be. So 100 is a perfect square of 10. So 100 is 10 square. Okay. Now the third property is squares of even numbers are always even numbers and squares of odd numbers are always odd numbers. So अगर किसी इवन नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो उसका स्क्वायर भी इवन होता है. अगर किसी ऑड नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो उसका स्क्वायर भी ऑड होता है. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर अदर देन 1 इज ईदर अ मल्टीपल ऑफ 3 और एक्सीड्स अ मल्टीपल ऑफ 3 बाय 1. अगर किसी भी नेचुरल नंबर का हम स्क्वायर करते हैं और उसको अगर हम 3 से डिवाइड करके देखें, या तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा या फिर उसमें रिमाइंडर 1 बचेगा. ठीक है, या तो वो 3 का मल्टीपल होगा या उसके मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा. वी कैन से इट लाइक दैट कि इट लीव्स अ रिमाइंडर 0 और 1 ऑन डिवाइडिंग इट बाय 3. Now the fifth property is the square of a natural number other than 1 is either a multiple of 4 or exceeds a multiple of 4 by 1. This is just exactly the same as property number 4. उसमें क्या था कि अगर एक किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो वो या तो मल्टीपल होगा 3 का या उससे एक नंबर बड़ा होगा, एक डिजिट बड़ा होगा. तो ये भी ऐसे ही है कि 1 के अलावा अगर किसी नेचुरल नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो वो या तो 4 का मल्टीपल होगा या 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा. इन अदर सेंस वी कैन से इट लाइक दैट कि if it will be divided, if the number will be divided by 4, the remainder will become 0, remainder will get 0 और 1. ठीक है. सपोज एक परफेक्ट स्क्वायर है 64, तो 64 तो कम्प्लीटली 4 पे डिवाइड हो रहा है. अगर उसको 4 पे डिवाइड करते हैं तो वो आता है 16. ठीक है, तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, 0 रिमाइंडर. अगर हम 81 की बात करते हैं, 81 एक परफेक्ट स्क्वायर है 9 का. सो अगर हम 81 की बात करते हैं, इसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर हमारे पास 1 बचेगा डिवाइड करने के बाद. ठीक है, या तो वो रिमाइंडर 1 बचेगा या फिर कोई नहीं बचेगा. सेम इज देयर विद इफ़ वी मल्टीप्लाई इफ़ वी डिवाइडेड विद 3. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6 इज द यूनिट्स डिजिट ऑफ द स्क्वायर नंबर ऑफ अ नेचुरल नंबर इज द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस ऑफ द गिवन नेचुरल नंबर. दिस प्रॉपर्टी इज बाय रीडिंग ओनली यू विल गेट इट लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, बट इसको मैं ईजी लैंग्वेज में आपको समझा देती हूँ.
जो किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट होता है, डिजिट एट द यूनिट प्लेस में होता है, वो क्या होता है, वो जो नेचुरल नंबर होता है जिसका हमने स्क्वायर निकालना है, उसके जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है उसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट के इक्वल होता है। नहीं समझ में आया? ये ऐसे होगा कि अगर हम बात करें 28 के स्क्वायर की, अगर हमें 28 का स्क्वायर निकालना है तो हम सिर्फ इसके यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं कि इसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट कौन सा होगा। अगर इसका स्क्वायर हम निकालेंगे उसका यूनिट डिजिट कौन सा होगा, उसका यूनिट डिजिट होगा 4। कैसे 4 कैसे होगा? 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो हमने इसके यूनिट डिजिट का स्क्वायर किया 64 और उसका यूनिट डिजिट कौन सा है? 4। तो 28 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी क्या होगा? 4। सिमिलरली अगर हम 35 के स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो इसका 35 का यूनिट डिजिट कौन सा है? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। अभी 25 का यूनिट डिजिट क्या है? 5। 35 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी 5 होगा। यूनिट डिजिट मीन्स लास्ट डिजिट। नाउ सेवंथ प्रॉपर्टी, there are no natural numbers p and q such that p square is equal to 2q square। कोई भी दो ऐसे नेचुरल नंबर्स नहीं हैं जिनमें एक का स्क्वायर दूसरे के स्क्वायर के ट्वाइस हो। ठीक है, मतलब अगर हम 6 और 4 की बात कर रहे हैं तो 6 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर के ट्वाइस के इक्वल कभी नहीं आएगा। मीन्स 36 विल नेवर बी इक्वल टू 4 4 16 इंटू 2 32, ये कभी भी इक्वल नहीं आएगा। ओके, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8 इज फॉर एवरी नेचुरल नंबर n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 प्लस n। ये n और n प्लस 1 का मतलब क्या है? ये दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार, जैसे 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें कि दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस, सपोज ये देखो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये 4 और 5 दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है। इनका स्क्वायर अगर हम करें और उनका डिफरेंस फाइंड आउट करें, वो किसके इक्वल आएगा? वो इन दोनों नेचुरल नंबर्स के सम के इक्वल आएगा। 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर जो होता है वो 5 प्लस 4 के इक्वल होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। आप इसको कैलकुलेट कर लो, ये भी 9 आएगा। ठीक है, सेम इज देयर लाइक 9 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? 9 प्लस 8 के इक्वल आएगा। 10 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर 10 प्लस 9 के इक्वल आएगा। ऑलराइट, now the next property is property number 9, the square of a natural number n is equal to the sum of first n odd numbers। अगर किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर हम निकाल रहे हैं तो उसका स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? जो भी नेचुरल नंबर होगा, सपोज वो 11 है तो वो 11 फर्स्ट 11 ऑड नेचुरल नंबर्स के सम के इक्वल होगा। इसको कैसे समझा सकते हैं कि अगर हमें 5 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? पहले 5 ऑड नेचुरल नंबर्स के सम के। ऑड नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 3 5 7, कितने चाहिए हमें? 5 9। ठीक है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 इक्वल्स टू 25। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। अ ट्रिपलेट MNP, ट्रिपलेट मीन्स 3 का जोड़ा। अगर 3 नेचुरल नंबर्स का जोड़ा MNP, सपोज वो 3 नेचुरल नंबर्स हैं, उनको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोला जाएगा इफ़ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। मीन्स इफ़ आउट ऑफ दीज 3 the square of 2 natural numbers, the sum of square of 2 natural numbers is equal to the square of the third number। अगर इन तीनों में से किन्हीं दो के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के इक्वल आता है तो उस जोड़े को, उस जोड़ा नहीं बोल सकते, उस ग्रुप को बोलेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। Okay, so based on this there is property number 10, that is for any natural number greater than 1, 2m m square minus 1 m square plus 1 is a Pythagorean triplet। नेक्स्ट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। एक नेचुरल नंबर है m जिसकी वैल्यू है 3, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम कैसे निकालेंगे? 3 ऐसे कौन से नंबर होंगे जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे? वो होंगे 2m मतलब 2 इंटू 3 6, 3 स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 1 9 माइनस 1 8 और 3 का स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर प्लस
1। तो 6, 8, 10 जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। नाउ बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज वी आर सॉल्विंग फर्स्ट 7 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.2. द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो. एक्सरसाइज 3.2 द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजन. अभी हमें ये बोला हुआ है कि ये सारे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, बस इनका रीजन बताना है. वो कैसे? फर्स्ट इज 1 5 4 7, सेकेंड 4 5 7 4 3, थर्ड 8 9 4 8, लास्ट इज 3 3 3 3 3 3. नाउ वी कैन इजीली सी कि इनके यूनिट डिजिट पे कौन सा, इनके यूनिट डिजिट्स कौन से हैं, 7 3 8 एंड 3. सो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने जो की थी वो यही थी कि द नंबर्स विच एंड विद 2 3 7 एंड 8 दे कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. सो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 1 दे कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर्स. Now next the second question is show that the following numbers are not perfect squares. इनमें भी हमने वही बताना है कि कौन से perfect squares नहीं है. See इसका भी लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट है 7 है, 8 है, 3 है, 2 है. So they also cannot be perfect squares according to property 1. Third is the square of which of the following numbers would be an odd number. इनमें से किन का स्क्वायर odd number होगा? According to third property हमने देखा था कि odd numbers जो होंगे उनका स्क्वायर ही odd होगा और even numbers का स्क्वायर even होता है. ठीक है. So ये ऑड है और ये ऑड है. सो इन दोनों का ही जो स्क्वायर है वो ऑड होगा, बाकी सबका इवन होगा. ठीक है. सो नेक्स्ट द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. अभी अगर हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं उनके स्क्वायर्स के यूनिट डिजिट क्या होंगे. सो दिस वी डिड इन प्रॉपर्टी नंबर 6. 52 का स्क्वायर का अगर हम यूनिट डिजिट देखें तो वो कैसे निकालेंगे. 52 का लास्ट डिजिट है 2. सो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4. तो इसके स्क्वायर का लास्ट डिजिट भी होगा 4. 9 7 7, 7 इसका लास्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट है. तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49. 49 का यूनिट डिजिट क्या है 9. सो इसके स्क्वायर का 977 के स्क्वायर का जो लास्ट डिजिट होगा वो होगा 9. सिमिलरली 4 5 8 3, 3 का स्क्वायर 9. सो लास्ट डिजिट का इसके स्क्वायर का लास्ट डिजिट भी क्या होगा 9. यहाँ पे 7 है, 9 8 4. ठीक है. सिमिलरली वी कैन सॉल्व ऑल दीज. Now next is question number 5. Observe the following pattern. 1 plus 3 is equal to 2 square. 1 plus 3 plus 5 equals to 3 square. 1 plus 3 plus 5 plus 7 equals to 4 square. And write the value of 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus so on up to n terms. So जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1 plus 3, ये दो नेचुरल नंबर्स हैं तो उसका स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर. ये 3 ऑड नेचुरल नंबर्स हैं तो उसका स्क्वायर कितना होगा 3 का स्क्वायर. ये 4 हैं तो ये 4 का स्क्वायर. अभी हमने n तक निकालना है तो उसका स्क्वायर क्या होगा n स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न. 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 प्लस 1. 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 2. फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर. तो ये कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है. कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस किसके इक्वल होता है इन दोनों के सम के. सो 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 100 प्लस 99 मीन्स 199. सिमिलरली 111 माइनस 109 ये कैसे आएगा 111 स्क्वायर माइनस 110 स्क्वायर प्लस 110 स्क्वायर माइनस 109 स्क्वायर. तो ये दो कॉन्जिक्यूटिव ले लिया, फिर उसके बाद वाले दो कॉन्जिक्यूटिव ले लिए. सो इनका स्क्वायर किसके इक्वल आता है इन दोनों के सम के. इनका स्क्वायर किसके डिफरेंस किसके इक्वल आता है इन दोनों के सम के. सो इनको ऐड कर दिया, हमारे पास आ गया 440. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरियन. इनमें से हमें ये निकालना है, ये फाइंड आउट करना है कि कौन से ट्रिपलेट्स जो है पाइथागोरियन है. हमने ये पढ़ा था कि वो नंबर्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं अगर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर हो, कि दो के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के इक्वल हो. तो 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर आता है 289 और 17 का स्क्वायर भी कितना होता है 289. हेंस दे आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट. सिमिलरली 18 80 और 82 है तो 18 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर आता है 6724 और 82 का स्क्वायर आता है 6724. हेंस दे आर ऑल्सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट. बट इन द थर्ड पार्ट 14 48 और 51 है. सो 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर आता है 2500 बट 51 का स्क्वायर आता है 2601. सो दे आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. So that's all for today's video. In the next video we will do the next topic and solve the rest of the questions.